हमने फर्स्ट मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड मेथड. द नेम ऑफ द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम मेथड या इनकम मेथड में हम क्या करेंगे. सो इन एज पर योर इनकम मेथड व्हाट वी विल डू, हम जितना भी इनकम अर्न हुई है बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ योर इकोनॉमी, हम उन सबकी इनकम को क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, राइट. और जब हम उन सबकी इनकम को सम अप कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम, राइट. So यहाँ पे we can see the definition that according to this method, all the income received or accrued to be received by the factors of production through wages, salaries, interest, rent, royalty, profits, etc. are summed up to get the national income. मतलब आपके जितने भी factors of production हैं, वो जो भी income earn कर रहे हैं या फिर earn करने वाले हैं, right? तो उन सबकी इनकम को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट नेशनल इनकम, राइट. जिसको हम कैसे लिखेंगे, NNP एट FC. बट जब हम क्या करेंगे, जब हम सबके इनकम को सम अप करते हैं एज पर इनकम मेथड, तो हमें क्या मिलता है, NDP एट FC, जिसके अंदर हम क्या ऐड कर लेते हैं, NFIA, फिर हमें क्या मिल जाता है, NNP एट FC. सो इनकम मेथड को इसलिए हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं. Then this method includes all the income earned by the normal residents of our country during the year. This method is also known as factor payment method. इसको हम factor payment method भी बोलते हैं. Why we call it factor payment method? Because as per this method हम क्या कर रहे हैं, जितना भी factor income receive हुई है by all the residents, उसको हम क्या कर रहे हैं, sum up कर रहे हैं. Fine. So that's why इसको हम factor payment method भी बोलते हैं. Now let's see that what is the formula to calculate national income as per income method. So let's see the components. So the components of income method are, the first one compensation of employees, the second one operating surplus, and the third one mixed income. ये तीन components आपको हमेशा याद रखने हैं. These three components are basically used to calculate your income method. Now let's further understand कि इन तीनों components के अंदर क्या-क्या include होता है. So the first component is compensation of employees. So compensation of employees का मतलब क्या है, जब कोई भी employee या कोई भी person कहीं भी work करता है, तो उस job के return में उसे जो भी पैसे मिलते हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो काइंड के फॉर्म में हो, या किसी और तरीके से मिलते हैं, so that is all included in compensation of employees. जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अमाउंट पे करता है या जो भी उसको पे करता है फॉर हिज और हर सर्विसेज, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सो इट इज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय for giving production services. It includes payment in cash as well as kind, directly or indirectly received by the employees. It includes wages and salaries in cash, wages and salaries in kinds, and employers' contribution to social security schemes. So these are basically the components of compensation of employees. तो अगर आपसे पूछा जाए कि compensation of employees के अंदर क्या-क्या काउंट होता है या क्या-क्या आता है, so you should always remember this, that wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and employers contribution to social security schemes. अब वो पैसा जो आप उसे कैश के फॉर्म में दे रहे हो, वो पैसा जो उसे काइंड के फॉर्म में लाइक आपने उसे अकोमोडेशन दिया, आपने किसी टाइप का मील फैसिलिटी दी, तो ये भी क्या है, आप उसे पे ही कर रहे हो, बट इट्स जस्ट आप उसे कैश के फॉर्म में नहीं दे रहे हो, आप काइंड के फॉर्म में पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को. सिमिलरली आपने सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल you're contributing in PF, fine, so that will also be considered in compensation of employees. So this is the first component of income method.
Now let's see the next component. The next component is operating surplus. अब operating surplus में basically वो सब total होगा जो कौन रिसीव कर रहे हैं, आपके factors of production. We all know basically we have 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, तो ये जो factors of production रिसीव करते हैं in return of their services, तो उसको हम किस में ट्रीट करेंगे, इन ऑपरेटिंग सरप्लस. तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या काउंट होगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है दैट जो प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट्स भी क्या है, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है. हमारे ये जो प्रॉफिट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. अब प्रॉफिट के 3 पार्ट क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, एक हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स और तीसरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड. फाइन. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन हो, सो इन दैट केस आप इन सब चीजों को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे. और अगर ये सेपरेटली लिखा है तो आप इन्हें सेपरेटली ऐड करके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो. फाइन. तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. और प्रॉफिट्स के भी फर्दर 3 पार्ट है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिविडेंड. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है दैट अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप इन सब चीजों को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे. बट इन केस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड ऑल सेपरेटली गिवन है, सो इन दैट केस आप इन सबको सेपरेटली क्या करोगे, अलग से मेंशन करोगे, और आई कैन से यू कैन ऐड इट. फाइन. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है स्पेसिफिकली, सो इन दैट मीन्स कि उसमें सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें रेंट भी है, उसमें प्रॉफिट्स भी है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. फाइन. सो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट component. The next component is mixed income. अब mixed income क्या होता है, it is basically जितने भी self employed persons हैं, right? जो भी self employed persons हैं उनकी जो income है that is included in mixed income. So वो income जो self employed persons ने earn करी है that is included in mixed income. For example given है यहाँ पे like for a farmer producing wheat on his own farm, right? So that is included in mixed income. Now this is your formula, or I can say the components to calculate national income as per your income method. So you can see this is your domestic income. हमें national income से क्या मिलता है, income method से क्या मिलता है, domestic income, right? इस domestic income के अंदर हम क्या करेंगे, we will just add NFIA, that is net factor income from abroad. जैसे ही हम ये add करेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, NNP at FC, and this is my national income. Fine. So आप इन तीनों components को add करेंगे और इन तीनों components को add करके क्या निकालेंगे, पहले domestic income, फिर उसके अंदर आप क्या add करेंगे, NFIA, फिर NFIA को ऐड करते क्या आ जाएगा आपके पास, national income, that is NNP at FC. Okay, now let's see some precautions. So the first precaution is the transfer income are not included in national income. Of course, transfer income क्या है बच्चे, it is the part of that person's income जिसने वो आपको income क्या की, ट्रांसफर करी है. So इसलिए आप उसको separately अपने income में count नहीं करोगे. Second, अगर आप कोई भी इनकम अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, अगर आपने अपना सेल करा सेकेंड हैंड गुड और उससे जो भी पैसे आए उसको भी आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हो. सिमिलरली अगर आपने कोई शेयर, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह में डील करा और उसको बेचने से जो पैसे आए दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. बट अगर कोई ब्रोकरेज आपने पे करा है या किसी ने ब्रोकरेज अर्न करा है ऑन सेल ऑफ दीज थिंग्स, तो आप उसको क्या करोगे, काउंट करोगे. एनी विंडफॉल गेन, अचानक के आपको कोई पैसे मिले विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो उसको भी आप कंसिडर या काउंट नहीं करोगे इन नेशनल इनकम. अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो फ्रॉम योर प्रीवियस सेविंग्स, उसको भी आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड, ऑफ कोर्स हमें पता है ये दैट हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं.
कोई भी फैक्टर सर्विस आपने अपने लिए प्रोड्यूस करी है, सो उसको भी आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखना, दैट दीज आर द प्रिकॉशंस जो आपको फॉलो करने हैं while calculating national income as per income method. Now let's see a few questions on income method. Okay, now you have this question जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। ओके, अब सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है एज पर इनकम मेथड। अगर मैं इनकम मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताऊं तो हमारा क्या है, सीओई दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस देन माय मिक्स्ड इनकम। अब मैं इसी फॉर्मूला के लिए यहाँ से वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगी। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमने पढ़ा था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तीन चीजें आती हैं, वेजेस इन कैश, in kind and employers contribution to social security schemes. Now let's see अब क्या क्या given है। अब compensation of employees directly तो given नहीं है, so उसके further components को हमें देखना पड़ेगा। So we have salary or wages in cash and salary and wages in kind. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 435। तो मेरा सीओई कितना हो गया, 435। Now let's see operating surplus. अब operating surplus कहीं given है, no, but we have rent and royalty, profit and interest. So in that case what we will do, हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, that means 100 plus 35 plus 25, तो ये कितना हो जाएगा, it will be 160। अब उसके बाद हमें मिक्स्ड इनकम को प्लस करना है, मिक्स्ड इनकम इज माय 250, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मैंने इनको ऐड करा, सो व्हाट आई गॉट 845। सो दिस इज माय एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वेरी सिंपल। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ the next question is, we have compensation of employees, wages in kind, rent and royalty, profit, interest, depreciation, NFIA and net imports. Now अब मुझे क्या निकालना है, I have to calculate national income. अब मुझे यहाँ पे domestic नहीं national income निकालना है। ओके, बिल्कुल निकालेंगे। सो सबसे पहले फॉर्मूला अगेन वही, that COE plus my operating surplus then my mixed income। अब नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है मुझे, दैट इज 1250। तो इन दैट केस मैं वेजेस इन काइंड को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि जब मेरे पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है दैट मीन्स ये 250 ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। सो मेरा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा, 1250। नाउ लेट्स सी योर ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए क्या है नहीं है, बट आई हैव रेंट एंड रॉयल्टी एंड प्रॉफिट्स। उसके अलावा डू वी हैव एनीथिंग एल्स, नो वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, देन वी हैव इंटरेस्ट ऑल्सो, यस वी हैव इंटरेस्ट ऑल्सो। सो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 100 प्लस 120 प्लस 80। सो हाउ मच इट इज, 100 200 इट इज 300। सो ये 300 यहाँ आ गया। देन नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना है, मिक्स्ड इनकम। डू वी हैव मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है नहीं, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, जीरो कंसिडर कर लेंगे, राइट। मैंने यहाँ पे इसे जीरो कंसिडर कर लिया, तो मेरे पास कितना आया अमाउंट, सी व्हाट विल बी माय वैल्यू, राइट। मेरे पास ये अमाउंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट, ये मेरे पास क्या आ गया, इन डी पी एट एफ सी, फाइन। अब मैं सीधा सीधा इसमें क्या कर दूंगी, ऐड NFIA, मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, NFIA। अब NFIA मेरा कितना है, -20,
फाइन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1530. So this 1530 is my NNP at factor cost. So is this question is clear to you all? But if you feel that you have any doubt or any confusion, you can just share your query in the comment section. Fine. Now let's move on to the next question.